طرف لو لگا کر جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور یہ بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات مجھ سے پیش کر آپ حضرات تقریر بھی سماعت کی اور نعت بھی سماعت فرمائی ہے، لہٰذا اب اس ناچیز کی زبان سے کچھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذکر شہید کربلا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون امام حسین جو اپنے پورے کنبے کو کربلا کی ریت پر تپتی ہوئی کوفہ کی سرزمین پر اپنے پورے کنبے کو لٹا دیجئے، اپنے پورے دوست و احباب کو لٹا دیجئے۔ کون امام حسین جو اپنے نبی کے کاندھے کے اوپر سوار رہتے تھے؟ کون امام حسین جو نبی کے پیٹھ پر سوار ہوتے تھے؟ کون امام حسین جن کے لب دونوں جہاں کے تاجدار چوما کرتے تھے؟ کون امام حسین جن کی پیشانی کو پیارے رسول چوما کرتے تھے؟ اللہ اکبر، ان کی عظمتوں پہ قربان جاؤ۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ذکر حسین سننا اور اس کی محفل سجانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اس کا عمل کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ یمن کے اندر ایک بادشاہ گزرا جس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام طیب رکھا۔ باپ جب دنیا سے چل بسا تو باپ کے تختے پر یعنی باپ کی کرسی پر بیٹا آ کے بیٹھا، یعنی باپ بادشاہ تھا تو بیٹا بھی بادشاہ بنا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، جب طیب نامی بادشاہ بنا ہے، بادشاہ بننے کے بعد، سلطنت کو سنبھالنے کے بعد، کرسی کو سنبھالنے کے بعد، اپنے سپاہیوں کو اپنے قریب بلاتا ہے۔ سب سے بڑا جو فوج تھا اس کو اپنے قریب کہتا ہے، اور قریب کرنے کے بعد ایک اعلان نامہ جاری کرتا ہے کہ وہ میرے فوجوں جتنے بھی ہو تمامی اس فوج کے اندر جتنے بھی بوڑھے شخص ہیں ان سارے فوجوں کو نکال دو، سارے کو اس محفل سے نکال دو اور نوجوانوں کی بھرتی پوری کرو۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، طیب نامی بادشاہ نے جب یہ اعلان کیا تو اعلان کرنے کے بعد
فوجوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اے بادشاہ سلامت، جان کی سلامتی مانگتے ہیں اور یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آخر بتاؤ تو صحیح کہ آپ نوجوانوں کی بھرتی کر رہے ہیں اور بوڑھوں کو نکال رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو طیب نامی بادشاہ نے کہا تھا جانتے نہیں ہو، بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کی ہڈی لاشٹ میں کمزور ہو جایا کرتی ہے، ان کی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی، وہ چلنے نہیں پاتے ہیں، تو دشمنوں سے لڑ کیا پائیں گے، اسی لیے نوجوانوں کی بھرتی کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق نوجوانوں کی بھرتی کی گئی۔ جب نوجوانوں کا لسٹ مکمل ہو گیا تو ایک کو حکم دیا کہ سنو کہ جب ہمارے سارے فوج سارے سپاہی تیار ہو جائے تو اس کے بعد مجھے حکم دینا، مجھے آ کے بولنا، میں آ کے اپنے سپاہیوں کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ تمامی فوجوں کو تمامی سپاہیوں کو سورنے کا حکم دیا، اسے بننے کا حکم دیا۔ وہ تمامی سپاہیوں نے اپنے پورے جسم کے اندر عذاب پہنے اور اس کے بعد سرے لگائے اور اس کے بعد گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے۔ یہ سب تمامی سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں آ گئی، اپنی اپنی تلواریں لے کر کے ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد دوڑے دوڑے ایک سپاہی گیا اور بادشاہ کو کہنے لگا وہ طیب دیکھو تمہاری سپاہی تیار ہے، آ کے اپنے فوج کا نظارہ کر لو، اپنے سپاہیوں کا معائنہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ طیب نامی بادشاہ نے جب یہ سنا ہے کہ میرے سپاہیوں نے تیاری کر لی ہے، میرے فوجوں نے تیاریاں کر لی ہے، تو طیب نامی بادشاہ اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا بستر چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد جب اپنی سپاہیوں کا معائنہ کیا، معائنہ کرتے کرتے آخر میں ہوتا کیا ہے کہ جب اپنے سپاہیوں کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو یہ طیب نامی بادشاہ اللہ اکبر جب اپنے سپاہیوں کو دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتی ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ روتے روتے وہی طیب نامی بادشاہ روتے روتے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ پھر سپاہیاں آئے اور آنے کے بعد ان کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا اور چھینٹا مارنے کے بعد انہیں ہوش میں لے کے آیا۔ ہوش میں لانے کے بعد یہ ایک سپاہی کھڑے ہو کے کہنے لگا ہے حضور جان کی سلامتی ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ کیسی کمزوری ہے جبکہ آپ کا باپ بھی بادشاہ تھا، آپ کا باپ بھی بہادر تھا اور آپ کا دادا بھی بہادر تھا۔ اللہ اکبر۔ طیب نامی بادشاہ کہنے لگا ہے آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو، بات کیا ہے؟ تو وہ سپاہی کہنے لگا ہے آخر یہ تو بتاؤ کہ جب آپ اپنے ہی فوج کو دیکھ کر کے رونے لگے اور اپنے ہی فوج کو دیکھ کر کے آپ کو غشی آ گئی، آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو طیب نامی بادشاہ نے کہا تھا کہ اے نادان تم جانتے نہیں ہو میں تیر چلانے میں بھی ماہر ہوں، میں تلوار چلانے میں بھی ماہر ہوں، جس طرح میرے باپ بہادر تھے اس طرح میں بھی بہادر ہوں، جس طرح میرے دادا بہادر تھے اس طرح میں بھی بہادر ہوں، لیکن میں اپنے سپاہیوں کی طاقت کو دیکھ کر کے گھبرا کے رویا نہیں ہوں، میں ان کی ہمت کو دیکھ کر کے گھبرایا نہیں ہوں، بلکہ جب میں اپنے سپاہیوں کو دیکھا ہوں تو اس وقت کربلا کے اندر عسکر کا پیاس یاد آ گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہداء کربلا حضرت علامہ افسر علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کربلا کے دھرتی کے اندر امام علی اصغر کا مجھے یاد آ گیا اور میں دل میں یہ سوچنے لگا اے مولا جس وقت کربلا قائم ہوا تھا، جس وقت امام حسین کربلا کے دھرتی کے اوپر 72 نوجوانوں کو لے کر کے اس کربلا کے دھرتی کے اوپر گئے تھے، کاش اس وقت یہ مجاہد ہوتے، کاش اس وقت یہ سپاہی ہوتے تو سارے سپاہیوں کو امام حسین کی محبت میں قربان کر دیتا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں یہ محبت تھی طیب کے سینے کے اندر امام حسین سے، اور جانتے ہیں یہ محبت یہ آنکھوں سے آنسو نکالنا کیا کارگر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ سال کے بعد یہی طیب نامی بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے
इंतकाल होने के बाद जब उन्हें दफन करके आ जाते हैं तो उनके ही सिपाहियों में एक आदमी ख्वाब में देखा कि तैयब बादशाह फूल के बागीचों में जन्नत के अंदर टहल रहा है, जन्नत के अंदर घूम रहा है। तो सिपाही ने सवाल कर बैठा, हुजूर बादशाहों की यहाँ हिसाब बड़ी कठिन होती है, बड़ी सख्ती हुआ करती है, आखिर आपको जन्नत कैसे मिल गया? इतनी जल्दी आप जन्नत कैसे पहुँच गए? अल्लाहु अकबर। तैयब बादशाह ने कहा था, जानते हो मुझे बड़ी आसानी के साथ जन्नत मिल गई है, मुझे बड़ी आसानी के साथ जन्नत के अंदर रख दिया गया है। सिपाही ने सवाल किया, आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो तैयब ने कहा था कि जानते हो मुझे ये है कि जब मैं मर चुका था, मरने के बाद मेरे बाप दादाओं, मेरे बाप बेटों ने, मेरे दोस्तों अहबाब ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे मरने के बाद मुझे नहलाने के बाद कफना दिए और कफन इस तरह लगाए कि मुझे हिलने तक नहीं दिया, और जब फिर मुझे 4 कंधों पे लेके कब्रिस्तान तक लेके आए, इस तरह लेके आए, इस तरह आराम और सुकून के साथ लेके आए कि मुझे हिलने नहीं दिया, मुझे चोट तक आने नहीं दिया। फिर कब्र की काली कोठरी के अंदर मेरे बाप ने, मेरे बेटे ने, मेरे दोस्तों अहबाब ने, मेरे सारे रिश्तेदारों ने कब्र के अंदर डाल दिया, और उस वक्त डालने के बाद जब लकड़ियां रख दिया, उसके बाद मेरे सभी लोगों ने मुझसे इतनी बेरगबती की है, इस तरह मुझसे आंखें फेर के जाने लगे हैं मिट्टी डालने के बाद कि कोई इतना तक भी नहीं सोचा है कि देखे तो सही से कफन के अंदर का हाल क्या है, इनके चेहरे का हाल क्या है, कोई भी नहीं देखा। मैं तो परेशान हो गया था, मैं बड़ी लाचार था। जब सारे लोग मुझे दफन करके चल बसे, सभी लोग घर अपने जा चुके, उसके बाद जब मुनकर और नकीर कब्र के अंदर मुझसे सवाल करने के लिए आए हैं, तो उस वक्त देखता क्या हो, जैसे ही मुनकर नकीर ने सवाल किया है, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? अल्लाहु अकबर। मैं परेशान था कि मैं जवाब आखिर कैसे दूं। अल्लाहु अकबर। इसी इस्लाम में होता क्या है, एक इंसान जो अपने जिस्म को निकाब में भरे हुए, अपने चेहरे को निकाब में डाल करके फौरन मेरे कब्र के अंदर आए हैं, और आने के बाद कहने लगे हैं, ऐ मुनकर नकीर, अगर सवाल करना है तो मुझसे सवाल करो, इनसे सवाल मत करो, जो भी जवाब लेना है तो मुझसे जवाब लो, इनसे जवाब मत लो। मुनकर नकीर ने कहा था कि जनाब अल्लाह ने भेजा है मुझे इनके लिए, तो मुझे सवाल भी इनसे करनी है, जवाब मैं तुमसे क्यों लूं? अल्लाहु अकबर। उस वक्त कहने वाले ने कहा था कि मुनकर नकीर, जानते हो मैं कौन हूं, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? मुनकर नकीर ने कहा था कि मुझे नहीं जानता कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं। अल्लाहु अकबर। उस वक्त जब मुनकर नकीर ने ये कहा था, आप निकाब हटा के दिखाइए आप कौन हैं, जैसे ही इन्होंने निकाब हटाया तो मुनकर नकीर ने देख करके ये ताज्जुब करने लगा है कि ये कब्र के अंदर आने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि करबला के धरती के ऊपर शहीद होने वाले वही इमाम हुसैन आ चुके हैं। करबला के धरती के ऊपर शहीद होने वाले इमाम हुसैन आए हैं। अल्लाहु अकबर। मुनकर नकीर ने सवाल किया, हुजूर आखिर ये रहम किस लिए, ये करम किस लिए? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ भी नहीं बोले। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने से मुनकर नकीर जाने लगा, जब चल गया, उसके बाद प्यारे इमाम हुसैन भी जाने लगे, तो उस वक्त यही तैयब नामी बादशाह हजरत इमाम हुसैन के दामन को थाम लेते हैं और बड़ी इल्तिजा के साथ अर्ज करने लगते, हुजूर आखिर ये तो बताएं, यहाँ बाप छोड़ के चले गए, यहाँ बेटा छोड़ के चला गया, रिश्तेदार छोड़ के चले गए, दोस्तों अहबाब छोड़ के चले गए, इस कब्र के अंदर काली कोठरी के अंदर कोई किसी का होता नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी का हमसर न होता है, लेकिन यहाँ इस काली कोठरी के अंदर आप कैसे, आखिर किस वजह से इतनी करम है, ये मेहरबानी है। प्यारे इमाम हुसैन कहने लगे हैं, वो वक्त याद कर, वो दिन याद कर जब तुम्हारी
सिपाही तुम्हारे सामने मौजूद थी, होना तो ये चाहिए था कि तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ी हो जाए, तो होना तो ये चाहिए तुम अपने फौज को, अपनी सिपाहियों को देखने के बाद गुरूर और घमंड में आ जाओ। लेकिन जब अपनी सिपाहियों को तूने देखा है, उस वक्त तू और कुछ नहीं याद किया, बल्कि मेरे लाडले प्यारे अली असगर को याद करके तूने अपने आंखों से एक कतरा आंसू बहाया है, और वही उसका बदला है। हम लोग नबी के घराने वाले हैं, हम लोग किसी का बदला रोकते नहीं हैं, बल्कि जो मेरी मोहब्बत में, मेरी आल की मोहब्बत में एक कतरा आंसू बहा देता है, उसे हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर दाखिल कर देते हैं, उनका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करते हैं। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है, ये इमाम हुसैन की चाहत है, ये इमाम हुसैन से मुराबत है। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, जिन्होंने भी नबी के नवासों से मोहब्बत किया, नबी के नवासों से उल्फत रखा, नबी के नवासों को अपने सीने में हमेशा उनको जगाता रहा। याद रखो, अगर वो दुनिया के अंदर चाहे जैसा भी रहे, मगर वो मरेगा तो ईमान की हालत में मरेगा। अगर वो जाएगा भी तो ईमान की हालत में जाएगा। इसीलिए ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन की महफिल में अगर बैठो तो मोहब्बत के साथ बैठो, चाहत के साथ बैठो। क्यों? कि यही जरिए नजात है, यही बख्शिश की जमानत है। क्योंकि जन्नती जवानों के वही लोग हैं, वही सरदार हैं, और जन्नत के पूरे मालिक वही लोग हैं जिन्होंने करबला की धरती के ऊपर सारे तिनबे लुटा दिए। याद करो, आज दुनिया के अंदर जब मुहर्रम का चांद नजर आता है, नजर आने के बाद न जाने किस किस तरह लोग तमाशे करते हैं, खेलते और कूदते हैं। अगर ऐसे इंसानों को करबला की धरती की एक बात भी उनके सीने में अगर रहती, अगर उनके जहन में एक बात भी अगर समझ जाता, कसम खुदा की, मुहर्रम का चांद नजर आने के बाद उसके अंदर ऐसी बात नहीं आती, वो इंसान खेल और कूद नहीं करता, बल्कि जब जब भी मुहर्रम का चांद नजर आता, उनके आंखों में आंसू की लड़ियां बह निकलती, और फिर इमाम हुसैन की मोहब्बत में या तो कुरान पढ़ता, या तो जिक्र अस्कार करता, या तो कलमे तैयबा का विर्द करके उनके नाम पर बख्श करके अपने ईमान का जामिन बनाता, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करता। अगर उस इंसान को इतना मालूम होता कि करबला के धरती के ऊपर अल्लाहु अकबर कैसे कैसे हादसात हुए हैं, कैसी कैसी परेशानियां आई है, अगर वह इंसान जो दुनिया के अंदर खेल और कूद में जिंदगी बसर करता है, वह इंसान जो ऐशो इशरत का पसंद करता होगा, जो ऐशो इशरत में जिंदगी को बसर करता होगा, उस इंसान को यह समझना चाहिए कि करबला के धरती के ऊपर हुआ क्या है। आखिर उनसे पूछो जो 6 माह का बच्चा भी करबला में नहीं छोड़ा है। प्यारे इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत ज़ैनब रोती ही भी आती है, और आने के बाद सवाल करती है कि भैया आखिर हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आए, हम सब सब्र कर सकते हैं, हम सब मुसीबतों को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सारी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भैया हुसैन ये तो देखो, ये 6 माह का बच्चा है, इनकी छोटी ये इसकी उम्र छोटी है, इसकी जबान जब सूख जाती है, वो जबान बाहर निकालता है तो दिल धड़कने लगता है, दिल धड़कने लगता है, आंखों से आंसू की लड़ियां बह निकलती है। भैया इनका रोना हमें अब बर्दाश्त नहीं होता, आखिर इतना तो कीजिए, हो सकता है यजीदियों भी कोई बच्चा वाला होगा, हो सकता है यजीदियों में कोई ऐसा रहम दिल वाला होगा जिनके पास छोटा बच्चा हो, वही 1-2 कतरा पानी ला करके दे दे तो मेरे अली असगर का जान बच जाए। अल्लाहु अकबर। प्यारी ज़ैनब, हजरत ज़ैनब अपने भैया से ये अर्ज कर रही हैं, हजरत इमाम हुसैन अपने लाडले को प्यारे अली असगर को लेते हैं, गोद में लेते हैं, और गोद में लेने के बाद आपके कंधे पे जो मुस्तफा करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम का चादर मुबारक कंधे के ऊपर था, वो चादर उतार करके अपने प्यारे लाडले के चेहरे के ऊपर डाल देते हैं और डालने के बाद चलने लगे हैं यजीदियों की तरफ। और जब यजीदियों के करीब पहुंचे हैं तो यजीदियों ने ये आवाज लगाई है, यजीदियों ने ये अर्ज किया है, ऐ इमाम हुसैन, अगर हार माननी ही थी तो इमाम कासिम को लुटाना नहीं था, अगर हार माननी ही थी तो तुम्हें ये कुरान लाने की जरूरत क्या है? अगर ये कुरान पहले ही लेके आते तो हम तुम्हें माफ कर देते, हम तुम्हें बख्श देते। उस वक्त अब्बास अलमबरदार की बाजू काटने की जरूरत नहीं पड़ती, उस वक्त हुर की जान नहीं लेनी पड़ती, उस वक्त वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी को मारा नहीं जाता, उस वक्त कोई हजरत हबीब आजमी की जान नहीं ली जाती। अल्लाहु अकबर। प्यारे इमाम हुसैन कहने लगे हैं, ओ यजीदियों याद रखो, मैं कुरान लेके नहीं आया हूँ बल्कि मैं अपनी जान लेके आया हूँ। कुरान मेरे पास नहीं है बल्कि अपनी जान लेके आया हूँ। अब जब चादर हटा के दिखाते हैं तो नजर क्या आता है? कुरान नहीं है बल्कि 6 माह का बच्चा इमाम अली असगर है। उसके बाद प्यारे इमाम हुसैन कहने लगे, वो यजीदियों दुश्मनी है तो मुझसे है, अगर बागी हूं तो मैं हूं, मारना चाहते हो तो मुझे मारना, शहीद करना चाहते हो तो मुझे कर लेना, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया है? इस बच्चे को तो बख्श दो, इस बच्चे को कम से कम 2 घूंट पानी ही दे दो। अल्लाहु अकबर। उमर बिन साद जब ये सुनता है और यजीदी फौजों में जो 22,000 की फौज आगे मौजूद था, ये सारे जो तलवार अपने हाथों में लेके बैठे ही बैठे सारे इंसान यजीद के हाथों में जो तलवारें थी सबकी तलवार ढीली पड़ जाती है, नजरें नीची हो जाती है। क्यों कि जब इमाम अली असगर 6 माह के बच्चे को जब देखते हैं तो इन्हें भी शर्म महसूस होने लगी है कि इमाम हुसैन अब छोटे बच्चे को लेके आए हैं। अब भी उमर साहब नहीं समझ रहा है, अब भी यजीद ही नहीं समझ रहा है। उस वक्त उमर बिन साद कहने लगा है, ऐ हुरमिला आखिर देखते क्या हो, तीर क्यों नहीं चला देते हो, उसकी भी जान क्यों नहीं लेते हो? अल्लाहु अकबर। हुरमिला को जब ये आवाज दी गई है, हुरमिला जैसे ही तीर उठाया है, तीर चलाना ही चाहता है, उधर से हजरत सकीना हाथ का इशारा करके कहने लगी है, ऐ सालिम, ये मेरा छोटा भाई है, ये इन्होंने कोई गलती नहीं किया है, इस पर तीर मत चला देना। अल्लाहु अकबर। हुरमिला तीर चलाना चाहता है और सकीना की तरफ जब नजर पड़ती है इसका तीर नीचे गिर जा रहा है। इसी तरह 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि जब तीर चलाना चाहता है उसकी नजर हजरत सकीना की तरफ जा रही है, हजरत सकीना को देख रही है, और जब हजरत सकीना के हाथ हिलाना ये मासूमाना अंदाज से ये हरकतें देखता है तो ये इंसान के हाथ से तलवार इसके हाथ से नेजा छूट के जमीन पे गिर जाता है। फिर हुरमिला ने कहा, फिर हुरमिला को उमर बिन साद ने कहा था, ऐ हुरमिला, मैंने सुना था तुम बड़ा बहादुर हो, मैंने सुना था तुम बड़ा तीरंदाज हो, मैंने सुना था तुम्हारे पास तलवार के बड़े बड़े पैमाने हैं, आखिर तेरे अंदर कहाँ गई वो बहादुरी, आखिर वो तीरंदाजी कहाँ गई है? अल्लाहु अकबर। हुरमिला ने कहा था, ऐ उमर साहब सुन ले, मेरे अंदर वही तीरंदाजी है, मैं उसी तरह बहादुर हूँ जैसे पहले बहादुर था, मैं भी वैसे ही तीर चला सकता हूँ जैसे पहले तीर चलाया जाता था, लेकिन आज तीर चला नहीं पा रहा हूँ इस वजह से कि जब भी तीर चलाने के लिए चाहता हूँ उस वक्त मेरी नजर सकीना की तरफ जाती है और सकीना